السلام علیکم، میٹرو ون نیوز کے ساتھ میں ہوں ملیحہ خان اور میں ہوں فاطمہ راجپوت۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ چیئرمین یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت سینٹ کا اجلاس 27ویں آئینی ترمیم میں نئی شقیں 2/3 اکثریت سے منظور۔ آئینی ترمیم بل کے حق میں 64 اور مخالفت میں 4 ووٹ آئے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے منظوری کے لیے بل سینٹ میں پیش کیا۔ اپوزیشن نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ اجلاس میں اظہار خیال، کہا 27ویں آئینی ترمیم سینٹ سے پاس ہو چکی ہے، بل کی منظوری کے لیے تمام ارکان کا مشکور ہوں۔ آج تاریخی دن ہے، اراکین نے ضمیر کے مطابق ووٹ دیا۔ وفاقی کابینہ کا وانا کیڈٹ کالج کے طلباء کو ریسکیو کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ جوڈیشل کمپلیکس پر حملے کی شدید مذمت، کہا پوری قوم دہشت گردی کے خلاف متحد ہے۔ دہشت گردوں نے ہمارے بچوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچوں کو محفوظ رکھا۔ دہشت گردوں کو پسپا کیا، فیلڈ مارشل کی قیادت میں دہشت گردوں کو عبرتناک شکست دیں گے۔ اسلام آباد کچہری دھماکہ، خودکش حملہ آور کے سہولت کار اور ہینڈلرز گرفتار۔ ذرائع کے مطابق سول انٹیلیجنس ایجنسی نے برق رفتاری سے کارروائی کرتے ہوئے دونوں ملزمان کو حراست میں لے لیا۔ سہولت کار گزشتہ 1 ماہ سے راولپنڈی میں مقیم تھا۔ ہینڈلرز کو خیبر پختونخوا سے گرفتار کیا گیا۔ سہولت کار کو ڈھوک پراچا کے علاقے سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ افغان طالبان رجیم اور فتنہ الخوارج کے اسلام آباد کے لبادے میں چھپے مکروہ عزائم بے نقاب۔ افغان طالبان کی رجیم اور فتنہ الخوارج جیسے انتہا پسند گروہ ایک بار پھر اسلام کے مقدس نام کو اپنے ناپاک مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ گروہ اسلام جیسے پرامن مذہب کو دہشت کی علامت بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ معصوم انسانوں کا خون بہانا، خودکش دھماکے کرنا اور مساجد کو نشانہ بنانا اسلام نہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق افغان طالبان رجیم ایک جانب خود کو امارت اسلامی کہتی ہے کہ جبکہ دوسری جانب ہندوتوا نظریے سے روابط بڑھا رہی ہے۔ افغان مہاجرین کی باعزت وطن واپسی کا سلسلہ تیزی سے جاری۔ گزشتہ 1 روز میں تقریباً 11,600 افغان مہاجرین کو باعزت طریقے سے افغانستان واپس بھیجا گیا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک تقریباً 16,96,000 افغان مہاجرین کی وطن واپسی ہو چکی ہے۔ پاکستان میں اب بغیر پاسپورٹ اور ویزا کے داخلہ ممکن نہیں ہوگا۔ کھیل سے کھلواڑ کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ سری لنکن کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان جاری رکھنے کا فیصلہ، اعلامیہ جاری۔ محسن نقوی کی یقین دہانی پر فیصلہ واپس لیا گیا۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 ون ڈے میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ 14 نومبر کو کھیلا جائے گا۔ سہ ملکی T20 سیریز کے لیے زمبابوے ٹیم کی اسلام آباد آمد۔ سیریز کا آغاز 18 نومبر سے ہوگا۔ زمبابوے کی ٹیم آج مکمل آرام کرے گی۔ سہ ملکی سیریز میں پاکستان، سری لنکا اور زمبابوے کی ٹیمیں شرکت کریں گی۔ تمام میچز راولپنڈی میں 18 سے 29 نومبر کے درمیان ہوں گے۔ پرانے شیڈول کے مطابق یہ میچز 17 سے 29 نومبر تک راولپنڈی اور لاہور میں ہونے تھے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ شیڈول میں تبدیلی کا فیصلہ بورڈز کی مشاورت سے آپریشنل وجوہات کی بنیاد پر کیا ہے۔ DGISPR کی مختلف اسکولوں کے طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست، افواج پاکستان کے آپریشنل امور اور داخلی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کی۔ طلباء کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنی افواج پر فخر ہے جو پاکستانی عوام کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ بطور ذمہ دار شہری ہمیں سوشل میڈیا کے پروپیگنڈا سے خود کو بچانا
वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी के डायरेक्टर जनरल की मुलाकात। इंसदादी दहशतगर्दी, मंशियात, इंसानी स्मगलिंग, फ्रोंजिक और इमिग्रेशन और पुलिस ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। तरबियती कोर्सेज में बाहमी ताउन और बढ़ाने पर इत्तेफाक। बच्चों की ऑनलाइन हरासानी के सदबा की बाहमी इश्तराककार और कोऑर्डिनेशन मौसर बनाने का फैसला। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के 102 रुकनी वफ्द का हेडक्वार्टर्स एंटी नार्कोटिक्स फोर्स का दौरा। 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के तहत मेजर जनरल मोहम्मद रजा ने वफ्द की क़यादत की। ब्रिगेडियर सैयद इमरान अली ने ANF के तंजीमी ढांचे और कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। इंसदाद मनशियात के लिए ANF की काविशों और कामयाबियों पर तफसीली गुफ्तगू। DG ANF मेजर जनरल अब्दुल मुईद ने शुरका के सवालात के जवाब दिए। पंजाब हुकूमत का कलअदम TLP की जायदादें और असासे मुंजमद करने का हुक्म। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे भर में TLP के नाम पर मौजूद तमाम जायदादों और असासों की तफसीलात जमा करके 15 नवंबर तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। फैसला चेयरमैन सब कैबिनेट कमेटी ख्वाजा सलमान रफी की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर तजारत इजलास। महकमा तालीम के तरक्याती और गैर मुल्की इमदादी मनसूबों की पेशरफ्त का तफसीली जायजा। वज़ीर आला सिंध की स्कूल की तामीर नौ और अपग्रेडेशन के मनसूबों में तेजी लाने की हिदायत। कहा, तालीम मुल्क की तरक्की की रीढ़ की हड्डी है। तालीम पर खर्च होने वाला हर रुपया मुस्तकबिल में सरमायाकारी है। मनसूबों की तकमील के लिए 100% फंड्स जून 2026 तक मुख्तस कर दिए गए। सिंध के माहौलियात कोस्टल डिपार्टमेंट में तरक्की और तबादले। DPC की सिफारिश पर 4 असिस्टेंट डायरेक्टर्स को डिप्टी डायरेक्टर के ओहदों पर तरक्की दे दी गई। तरक्की ग्रेड 17 से ग्रेड 18 के ओहदों पर दी गई है। तरक्की पाने वालों में फरजाना नसीम, अली मोहम्मद रिंद, अब्दुल मालिक, अली नवाज भुमरो शामिल। नोटिफिकेशन सेक्रेटरी माहौलियात जुबैर चन्ना की मंजूरी के बाद दिया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा बल्दियात के तरक्याती मनसूबों का जायजा इजलास। वज़ीर आला को नासिर शाह की तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग। कहा, लोकल गवर्नमेंट के तरक्याती मनसूबों का मजमूई हजम 78 अरब रुपए से जायद है। महकमा बल्दियात के गैर मुल्की इमदादी मनसूबे 45 अरब रुपए से जारी हैं। 756 तरक्याती स्कीमों पर काम जारी है, जिनमें से 713 जारी और 43 नई स्कीमें शामिल हैं। कराची के 9 मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए 7 अरब 66 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। तरक्याती मनसूबों की माहाना पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की जाए। वज़ीर आला सिंध की अफसरान को हिदायत। सिंध हुकूमत के तरक्याती मंसूबे सूबे की मईशत और आवाम की जिंदगियों में वाज़े बेहतरी का सबब बन रहे हैं। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, कोस्टल हाईवे, रोहड़ी गुड्डू बैराज रोड, मेहरान हाईवे, टंडो अहलियात ता टंडो आदम सड़क और सांगड़ ता रोहड़ी शाहरा अहमियत के हामिल मंसूबे हैं। हाईवे और सड़कों के मंसूबे इलाकाई और बैनुल सूबाई रुबाबत के मजबूत बनाएंगे। तिजारत, ज़राअत और सनती शोबों को भी फरोग मिलेगा। सिंध हुकूमत की तरजीह तरक्की के अमल में शफाफियत, रफ्तार और अवामी फायदे को यकीनी बनाया जाए। गोलबर्ग टाउन के इलाके आयशा मंजिल पर बिल्डर्स की मनमानियां। पायनियर 1 ब्लॉक 7 पब्लिक सेल मंसूबे को SBCA की जानिब से मंजूर तो दी गई। बिल्डर ने सेल NOC के बगैर शहरियों को फ्लैट्स और दुकानें फरोख्त करना शुरू कर दी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुतालिका अफसरान बड़ी जालसाजी पर लाइल। बिल्डर की जानिब से पब्लिक सेल मंसूबे पर मेज 9 फ्लोर बना दिया गया। SBC हुक्काम खामोशी ये जाहिर करती है कि इदारे के अमले की मिली भगत ये काम जारी है। कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सेशन जजेस के तबादले कर दिए। मेंबर इंस्पेक्शन टीम 1 ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
शकील अहमद एंड शेख ए डी एंड सेशन जज कराची ईस्ट तैनात। उस्मान अहमद खान ए डी एंड सेशन जज कराची साउथ तैनात। युसरा अशफाक कराची ईस्ट से कराची सेंट्रल मुंतकिल। रिहाना एहसन, गुलरेज मेमन समेत कई जुडिशल अफसरान के तबादले। सुहेल अहमद जतोई एडिशनल रजिस्ट्रार हाई कोर्ट बेंच सक्खर तैनात। कराची यूनिवर्सिटी में खूंखार कुत्तों का राज। चंद मिनटों में 2 मासूम बच्चे आवारा कुत्तों का शिकार। 5 साला बच्चे का आधा चेहरा कुत्ते ने नोच डाला। वाकया कराची यूनिवर्सिटी के अंदर पेश आया। कुत्तों ने मासूम बच्चे और बच्ची को अपना शिकार बनाया। मकीनों का कहना है कि गुज़िश्ता कई माह से कराची यूनिवर्सिटी में कुत्ता पकड़ मुहिम बंद है। आवारा कुत्तों के खात्मे के लिए हंगामी मुहिम शुरू करने की अपील। कराची के तिजारती मरकज लाइट हाउस के लंडा बाजार में आतिशज़द की आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। हुक्काम के मुताबिक आग ठेले और पथारों में लगी। लाखों रुपए का सामान जलकर खाकस्तर। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रात गए थाना जमान टाउन की हुदूद में वाक़े निजी अस्पताल में मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगने का अफसोसनाक वाक़या कोरंगी 2.5 नंबर पर मौजूद सुल्ताना मेडिकल सेंटर में पेश आया। 2 साला मोहम्मद हुसैन डॉक्टर की गफलत की वजह से जान की बाजी हार गया। अहले खाना ने अस्पताल इंतजामिया पर संगीन गफलत के इल्जामात आयद कर दिए। पुलिस ने वाक़े में मुलव्विस डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। अहले खाना के मुताबिक पुलिस लेन देन में लगी हुई है। हमें इंसाफ फराहम किया जाए। वेस्ट पुलिस का सीटीडी और रेंजर्स के हमरा मंगोपीर गरम चश्मा के करीब सर्च ऑपरेशन। दाखिली और खारिजी रास्तों को सील करके मशकूक मकामात की तलाशी ली गई। मशकूक अफराद को मजीद तस्दीक और पूछगछ के लिए थाने मुंतकिल। एसएसपी वेस्ट तारिक इलाही मसूई के मुताबिक सर्च ऑपरेशन का मकसद इलाके में अमन व अमान का क़याम और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ जराइम पेशा अनासर की गिरफ्तारी अमल में लाना है। कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में रोजाना की बुनियाद पर टारगेटेड कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी। लांढी पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन। दाखिली और खारजी रास्तों को सील करके घरों, होटलों और मशकूक अफराद की तलाश डिवाइसेस के जरिए मशकूक अफराद की वेरिफिकेशन। किमाड़ी इन्वेस्टिगेशन पुलिस की अहम कार्रवाई। मासूम बच्चों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने वाले मुलजिम गिरफ्तार। एसएसपी तौहीद मेमन का कहना है कि मुलजिम बच्चों के साथ ज्यादती की नाजेबा वीडियोस बनाते थे। मोबाइल फोन से नाजेबा मवाद बरामद कर लिया गया है। शाह लतीफ पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में मुलव्विस 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान से 25 कीमती फोन, 2 असलहा, मोबाइल फोन की IMEI तब्दील करने वाली डिवाइस बरामद। शनाख्त नूर, जुबैर, हमीद और मेहरान के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान का गैंग मेहरान हाईवे, नेशनल हाईवे समेत मुख्तलिफ इलाकों पर लूट मार की वारदातें करता था। गिरफ्तार मुलजिमान मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर तब्दील करके दोबारा फरोख्त करते थे। माड़ीपुर भोतानी गोट में पुलिस मुकाबले में मुलजिम की हलाकत की तफसीलात जारी। मुलजिम की शनाख्त वहाब हुसैन के नाम से हुई। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक पुलिस मुकाबला कांस्टेबल वक्कास से हुआ जो ड्यूटी पर जा रहा था। 2 मुलजिमान मोटरसाइकिल सवारों ने कांस्टेबल को लूटने की कोशिश की। फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम मारा गया। कांस्टेबल वक्कास की पोस्टिंग मौजको थाने में है। कांस्टेबल वक्कास की बहादुरी पर इसको CC सेकंड और कैश रिवॉर्ड बतौर इनाम दिया जाएगा। कराची में जराइम पर काबू पाने के लिए किया गया इकदाम ही गैर महफूज हो गया। सदर मुमलिकत की रिहाइशगाह बिलावल हाउस के करीब बड़ी वारदात। सेफ सिटी प्रोजेक्ट कैमरों के लिए लगाया गया डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चोरी हो गया। DG सेफ सिटी ने तस्दीक कर दी। आसिफ एजाज शेख ने कहा, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चोरी होने के बाद सेफ सिटी के कैमरे उतार लिए गए। सेफ सिटी प्रोजेक्ट से चोरी तशवीशनाक बात है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में लाखों रुपए मालियत का सामान होता है।
कराची एयरपोर्ट से लेकर घुग्गर फाटक तक पुलिस की मनमानियां। सस्सी टोल प्लाजा पर कायम चेक पोस्ट पर एक्साइज नारकोटिक्स के एहलकारों की सरेआम रिश्वत वसूली। एक्साइज की वर्दी में प्राइवेट लोगों को सरेआम वसूली पर लगा दिया गया। प्राइवेट अफराद गाड़ी रोककर चेकिंग के बहाने रिश्वत वसूली करने लगे। बदमाश हो तुम, घटिया इंसान हो, गिरे हुए हो। वो मजाक में सर। मजाक किसी मासूम और बेगुनाह लड़की के सर से दुपट्टा खींचते हुए तुम्हें अपनी बहन का नंगा सर याद ना आया? और पाकिस्तान के लेजेंड अदाकार कबीर खान की आज 42वीं सालगिरह मनाई जा रही है। 13 नवंबर 1942 को पैदा होने वाले मोहम्मद कबीर खान ने फनी सफर का आगाज रेडियो पाकिस्तान पेशावर से किया। 1964 में पीटीवी के पहले ड्रामे नजराना से टीवी पर जलवगर हुए और देखते ही देखते वो हर किरदार में जान डालने वाले के अदाकार बन गए। कौमी हीरो कबीर खान ने 200 से जायद फिल्मों और हजारों ड्रामों में अपनी फनकाराना सलाहियतों के जौहर दिखाए। 5 मार्च 2023 को कबीर खान तवील फनी सफर के बाद दुनिया से रुखसत हुए। वेलकम बैक। तफसीली खबरों का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की जेर सदारत सेनेट का इजलास हुआ। 27वीं आईनी तरमीम में नई शिकें 2/3 अक्सरियत से मंजूर की गईं। आईनी तरमीम बिल के हक में 64 और मुखालफत में 4 वोट आए। वजीर कानून आजम नजीर तारा ने मंजूरी के लिए बिल सेनेट में पेश किया। अपोजिशन का डेस्क बजाकर एहतजाज, बिल की कॉपियां फाड़ दी गईं। All those members against newly inserted clause 3 may rise in their seats. Count to be made. 64 members have voted in favor of newly inserted clause 3 and should I count 4 members are against it. Newly inserted clause 3 therefore form part of the bill by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Omission of clause 4 of the bill has passed by the Senate. Clause 4, the bill as passed by the Senate has been omitted by the National Assembly. Now I'll put the question in the House. All those members against the omission of clause 4 of the bill as passed by the Senate may rise in their seats. Count to be made. Members may take their seats. 64 members have voted in favor of the omission of clause 4 of the bill as passed by the Senate. खबर शामिल करेंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा 27वीं आईनी तरमीम सेनेट से पास हो चुकी है। बिल की मंजूरी के लिए तमाम अरकान का मशकूर हूँ। आज तारीखी दिन है। अरकान ने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया है। इनके वालिद ग्रामी के साथ मैंने इन हाउसेज में काफ़ी मुद्दत काम किया और मैं समझता हूँ कि अगर हम विश लिस्ट पे चलना चाहें तो फिर तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। ये भूल गए हैं कि जब अदम एतमाद नो कॉन्फ्रेंस हुआ तो कैसे आनन फानन तमाम रूल्स के खिलाफ यानी असम्बली तोड़ दी गई और चंद मिनट में असम्बली को घर भेज दिया गया और उसको भी यानी नो कॉन्फ्रेंस को ना आने के लिए 1 महीना उस वक्त इनके स्पीकर साहब अभी ऑनरेबल मेंबर हैं वो नेशनल असम्बली के, उन्होंने इजलास बुलाने की तकलीफ ही नहीं की। तो देखिए नो रॉन्ग मेक राइट। एक तो फंडामेंटल चीज़ है कि 27th अमेंडमेंट इस हाउस में पास हो चुकी है। नेशनल असम्बली में गई, इन्होंने खुद कुछ निशानदेही की, कमज़ोरियों की या करेक्शंस की और उस पर ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि आर्टिकल 6 में बहुत बड़ी ओमिशन थी क्योंकि मैं 18वीं तरमीम में उसका हिस्सा हूँ था और आज भी मैं समझता हूँ कि वो बड़ी अच्छी एक काम हुआ। उसमें कई लोग माशाल्लाह 26-27 लोग इन्वॉल्व थे। तो उसमें ये जब तरमीम की गई तो वो दैट इज़ द ओनली न्यू चेंज कह लें। बाकी सारी की सारी वो है जो इन्होंने खुद निशानदेही की या नेशनल असम्बली में आवाज़ें उठी तो उसके हवाले से
یہ جو 8 امینڈمنٹس ہیں اس میں ورچولی 7 جو ہیں وہ ہیں، اور ایک آرٹیکل 6 میں جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت میجر ایک اومیشن ہو گئی تھی، اس کو ٹھیک کرنے کی بات۔ اب بات ہے کہ جب پنجاب حکومت گرانے کا کام آتا ہے تو اس وقت ججوں کی منورنگ نظر نہیں آتی، وہ لکھا ہوا ہے اسے ووٹ کاؤنٹ ہوگا اور اسی کی سزا میں وہ گھر جائے گا، لیکن ماشاءاللہ ججمنٹ یہ لے لیتے ہیں جب ان کا بس چلتا ہے کہ جی یہ ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا، گھر بھی جائیں گے۔ کیا بات ہے بھائی، یہ تو پھر مطلب ہے کہ جو دل ہمارا کرے گا وہ ہوگا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھائی نے کہا کہ جی فراڈ اینڈ ڈسیپشن، بھئی آپ نے کس نے آپ کو روکا ہے؟ آپ کیوں سنتے ہیں بات ریموٹ کنٹرول سے کہ آپ نے کمیٹی میں نہیں جانا؟ آپ اتنے وزڈم ہے آپ کی، آپ کو کمیٹی میں جانا چاہیے تھا، ہو سکتا ہے یہ کریکشن وہیں ہو جاتی۔ دوسری جانب وفاقی کابینہ کا وانا کیڈٹ کالج کے طلباء کو ریسکیو کرنے پر سیکیورٹی فورسز کا خراج تحسین۔ جوڈیشل کمپلیکس پر حملے کی شدید مذمت کی، کہا پوری قوم دہشت گردی کے خلاف متحد ہے۔ دہشت گردوں نے ہمارے بچوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچوں کو محفوظ رکھا، دہشت گردوں کو پسپا کیا۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں دہشت گردوں کو عبرتناک شکست دیں گے۔ ان سارے دہشت گردوں کو عبرتناک شکست دیں گے۔ وانا کیڈٹ کالج پہ جس طرح سے دہشت گردی کا حملہ ہوا تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری مسلح افواج کے جوانوں نے جو ہے وہ انتہائی بہادری کے ساتھ اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ جو ہے وانا کیڈٹ کالج میں جو ہے وہ دہشت گردوں کو جو ہے وہ جہنم واصل کیا۔ میں یہاں پہ یہ بات کہنی چاہوں گا کہ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ جی ان کے ساتھ مذاکرات کیے جانے چاہیے، ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے جو لوگ معصوم بچوں کو جو ہے وہ شہید کرنے اور قتل کرنے کے اوپر جو ہے وہ تلے ہوئے تھے۔ قوم جو ہے وہ پوری طرح سے متحد ہے اور یہی اتحاد جو ہے یہ ہماری طاقت ہے۔ سیاسی اور عسکری قیادت کا اتحاد اور ان کی جو پیشہ ورانہ جو ہے وہ دلیرانہ جو قیادت ہے، یہی ہماری طاقت ہے۔ اس سے پہلے بھی دہشت گردی کے اوپر ہم نے جو ہے وہ قابو پایا ہے، ابھی انشاءاللہ تعالی دہشت گرد جو ہیں ان کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ یہ جہاں پہ بیٹھ کے یہ ساری کارروائیاں کرنے کے لیے جو ہے یہ ہندوستان کی اور راہ کی مدد سے تیاریاں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہماری مسلح افواج جو ہیں وہاں پہ بھی ان کو جو ہے وہ نیوٹرلائز کریں گی اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کو، پاکستان کی سرحدوں کو جو ہے ان دہشت گردوں سے محفوظ کریں گی۔ میں جی بہت بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں پاک افواج کو، جنہوں نے وانا کے اندر جو آپریشن کر کے بے شمار بچوں کی زندگیاں بچائی ہیں اور اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ان کی زندگیاں بچائی ہیں۔ میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ عوام کے سامنے ابھی جیسے جنگ میں ان کی مہارت سامنے آئی ہے، دوبارہ سے سوئسائڈ بامبرز کی موجودگی میں جن کا مقصد صرف وہاں پہ یرغمال بنا کے بچوں کو بالکل جیسے APS کا واقعہ ہوا تھا اس کو ریپیٹ کرنا تھا، یہ جو مہارت فوج نے دکھائی ہے یہ بارہا ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں جتنی اہم بات یہ ہے کہ جتنی بھی دہشت گردی ہے اس کی مذمت جتنی بھی کی جائے وہ کم ہے، اور ہمارے نیبرہڈ کے اندر وہ تمام لوگ جو مذموم سازشیں کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، ان کو یہ واضح پیغام چلا جانا چاہیے اس فوجی طاقت کے ذریعے کہ ان کو دوبارہ سے منہ کی کھانی ہے۔ فتنہ الخوارج نے کس طرح سے ایک بزدلانہ اٹیک ہمارے نوجوان بچوں کے اوپر جو وانا میں کیڈٹ کالج کے اندر کیا اور ان کو ہاسٹیج بنانے کی کوشش کی۔ ہماری افواج پاکستان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان ماؤں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنے جوان بچوں کو فرنٹ لائن پہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ ہمارے جو جوان ہیں جنہوں نے 500 کیڈٹس کی سکسیسفلی بہت بہترین کامیابی سے جانیں بچائیں اور یہ ایک سکسیسفل آپریشن کیری آؤٹ کیا، ہم ان سب کو سلام پیش کرتے ہیں۔ انہی بچوں کی، انہی نوجوانوں کی سیکریفائسز ہیں اس ملک کے لیے، اسی کی وجہ سے آج ہمارے ملک کی سالمیت جو ہے وہ انٹیکٹ ہے۔ اور جیسے جیسے دہشت گردی جو ہے وہ انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا چند سال پہلے اس نے اپنا زور پھر سے پکڑا، میرے خیال سے کہ آج جس طرح سے ہماری افواج اس کے خلاف
بھرپور طریقے سے لڑ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بھی اس میں برکت ڈال رہے ہیں, کامیابی دیں گے. اور ایک بار پھر ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے تمام جوانوں کو جنہوں نے اس آپریشن میں حصہ لیا, اور خارج پاکستان کی لیڈرشپ کو, فیلڈ مارشل صاحب کی قیادت کو, جن کی قیادت میں ہماری تمام کیڈٹس کی جان بھی محفوظ رہی. ہمیں اپنی افواج پہ فخر کرنا چاہیے کہ یہ سانحہ جو وانا جو اے پی ایس کا سانحہ تھا اس سے بڑا سانحہ واقع ہو سکتا تھا اگر ہماری افواج جو تھی وہ بہترین حکمت عملی کے تحت اپنے بچوں کو وہاں سے ریسکیو نہ کرتی. میں سمجھتا ہوں کہ دشمن نے جو اس کو زخم چاٹ رہا ہے, میں ہر وقت یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان اپنی شکست کے زخم چاٹ رہا ہے اور وہ اپنی پراکسی کے ذریعے, اب اس کی پراکسی میں افغانستان بھی شامل ہے, بی ایل اے بھی شامل ہے اور ٹی ٹی بی بھی شامل ہے. ان سب کو انشاءاللہ ہم شکست دیں گے اور پاکستانی جو افواج ہے ان کی صلاحیتوں کے بل بوتے کے اوپر جس کو اکنالج پوری دنیا کر رہی ہے, انشاءاللہ تعالی ہم اس دہشت گردی کی جنگ میں کامیاب ہوں گے. پاکستانی قوم سے میری بھرپور اپیل ہے کہ ہم اپنے شہداء کے لیے ان کے لیے دعا گو ہوں اور اپنے غازیوں کے لیے دعا گو ہوں, اور اس وقت افواج پاکستان کے پیچھے کھڑے ہو کر ہم اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو جیسے ہم نے 10ویں میں شکست دی, انشاءاللہ تعالی اس دہشت گردی کی جنگ میں بھی شکست دیں. کیڈٹ کالج وانا کے اندر خارجیوں کے بزدلانہ حملے سے بچاتے ہوئے پاک افواج نے 600 سے زیادہ طالب علموں کو محفوظ رکھا ہے. اس کامیاب آپریشن کے اوپر میں پاک فوج کو اپنی طرف سے, اپنی حکومت کی طرف سے اور ساری قوم کی طرف سے خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. اس کامیاب آپریشن نے پاک فوج کی جو پیشہ ورانہ مہارت اور بہادری کی ایک مثال قائم کی ہے. دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کے سامنے ہمیشہ کی طرح جو پاک افواج سامنے کھڑی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں رکھے اور پاکستان کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے. میرا آپ سے یہ وعدہ ہے, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر یہ حکومت رات دن محنت کرتے ہوئے پاکستان کو ہر محاذ پہ اس کا مقام حاصل کروا کے دے گی. پاکستان زندہ باد. ہمارا دین اسلام اور آئین پاکستان دونوں ہمیں امن, عدل اور مساوات کا درس دیتا ہے. آئیے ہم سب مل کر نفرت, انتہا پسندی اور تعصب کے خلاف کھڑے ہوں اور ایک ایسا پاکستان تعمیر کریں جو امن, بھائی چارے اور احترام انسانیت کی روشن مثال ہو. پاکستان پائندہ باد. بہت بڑے چیلنجز ہیں لیکن الحمدللہ پاکستان. اور اب بلٹن میں خبر شامل کریں گے. اسلام آباد کچہری دھماکہ, خودکش حملہ آور کے ہینڈلر اور سہولت کار گرفتار. ذرائع کے مطابق سول انٹیلیجنس ایجنسی نے برقرفتاری سے کارروائی کرتے ہوئے دونوں ملزمان کو حراست میں لے لیا. سہولت کار گزشتہ 1 ماہ سے راولپنڈی میں مقیم تھا. ہینڈلر کو خیبر پختونخوا سے گرفتار کیا گیا ہے. سہولت کار کو ڈھوک پراچا کے علاقے سے گرفتار کیا گیا. افغان طالبان رجیم اور فتنہ الخوارج کے اسلام کے لبادے میں چھپے مکروہ عزائم بے نقاب ہو گئے ہیں. افغان طالبان کی رجیم اور فتنہ الخوارج جیسے انتہا پسند گروہ ایک بار پھر اسلام کے مقدس نام کو اپنے ناپاک مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یہ گروہ اسلام جیسے پرامن مذہب کو دہشت کی علامت بنانے پر تلے ہوئے ہیں. معصوم انسانوں کا خون بہانا, خودکش دھماکے کرنا اور مساجد کو نشانہ بنانا اسلام نہیں. تجزیہ کاروں کے مطابق افغان طالبان رجیم ایک جانب خود کو امارت اسلامی کہتی ہے جبکہ دوسری جانب ہندوتوا نظریے سے روابط بڑھا رہی ہے. طالبان بھارت میں ہونے والے حملوں کی مذمت کرتے ہیں مگر پاکستان میں جاری دہشت گردی اور خودکش حملوں پر مکمل خاموش رہتے ہیں. اور اب بتائیں گے آپ کو افغان مہاجرین کی باعزت وطن واپسی کا سلسلہ جاری. گزشتہ 1 روز میں تقریباً 11,600 افغان مہاجرین کو باعزت طریقے سے افغانستان واپس بھیجا گیا. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک تقریباً 16,96,000 افغان مہاجرین کی وطن واپسی ہو چکی ہے. پاکستان میں اب بغیر پاسپورٹ اور ویزا کا داخلہ ممکن نہیں ہوگا.
खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। बुलेटिन में खुशामदीद। आगे बढ़ेंगे, खेलों के मैदान से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे खेल से खिलवाड़ की कोशिश नाकाम बना दी गई। श्रीलंकन क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का फैसला, एलामिया जारी कर दिया गया। मोहसिन नकवी की यकीन दहानी पर फैसला वापस ले लिया गया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मैच 14 नवंबर को खेला जाएगा। और दूसरी जानिब सह मुल्की T20 सीरीज जिम्बाब्वे टीम इस्लामाबाद आमद। सीरीज का आगाज 18 नवंबर से होगा। जिम्बाब्वे की टीम आज मुकम्मल आराम करेगी। सह मुल्की सीरीज में पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें शिरकत करेंगी। तमाम मैचेस रावलपिंडी में 18 से 29 नवंबर के दरमियान होंगे। पुराने शेड्यूल के मुताबिक ये मैचेस 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में होने थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि शेड्यूल में तब्दीली का फैसला बोर्ड्स की मुशावरत से ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर किया गया है। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे GISPR की मुख्तलिफ स्कूलों और तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त मुनक्किद हुई। अफवाज पाकिस्तान के ऑपरेशनल उमूर और दाखिली सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू हुई। तलबा का कहना था कि हमें अपनी अफवाज पर फ़ख्र है जो पाकिस्तानी अवाम के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए हम्मा वक्त तैयार हैं। बतौर जिम्मेदार शहरी हमें सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा से खुद को बचाना होगा। से ये धरती हर दम यूं ही आजाद रहे, हर पीर जवां यक दिल यक जां, हर फर्द यहाँ दिल शाद रहे। गूंजेगी सदा हर कौन मकाबेदार ज़माना बोलेगा। ये धरती सलामत है उनके सबब से, ये धरती सलामत है उनके सबब से, जो देते हैं कुर्बानियाँ रोज़ो शब। वतन के मुहाफिज गैरत की निशान, सलाम है उन पर फख्र जान। It was a great privilege for me to be present at a place where Army could interact with our students, cleared all our doubts, and we are proud of our armed forces for always ready to sacrifice their lives for the people of Pakistan. Pakistan, Hamesha Zindabad. Pak Army, Paindabad. We talked with DGISPR and he told us to see the things from the very right perspectives, and he cleared all the doubts which were rising in the minds of the youth. He also told us about disinformation, misinformation and malinformation. Today we learned that how to combat the strategic arrogance of our enemy. We really salute you, Pakistan Army, for your resilience, commitment and bravery. Information is given to us in form of a narrative on social media, and we choose to believe anything that is out there. So we really need to justify that information that we believe is true through facts and figures. Pakistan Army and the people of Pakistan work together to put up a strong front against India, who's always putting the blame game, and that way we were able to prove very successful in this whole war, and overall the whole world got to see how successful we are as a nation. Wonderful experience, and we had cleared our mindset. We had also cleared our queries had in our minds, and what scope and at what sector Pakistan Army is helping us to protect our country from this crucial and brutal terrorism that is happening. और अब बात करेंगे अहम मुलाकात के हवाले से। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से यूके के नेशनल क्राइम एजेंसी के डायरेक्टर जनरल की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी और मंशियात, इंसानी स्मगलिंग, फॉरेंसिक, इमिग्रेशन और पुलिस ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। तरबियती कोर्सेज में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। बच्चों की ऑनलाइन हरासानी के सदबाब के बाहमी इश्तराक कार और कोऑर्डिनेशन मौसर बनाने का फैसला। खबर देंगे, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के 102 रुकनी वफ्द का हेडक्वार्टर्स एंटी नार्कोटिक्स फोर्स का दौरा। 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के तहत मेजर जनरल मोहम्मद रजा ने वफ्द की क़यादत की। ब्रिगेडियर सैयद इमरान अली ने ANF के तंजीमी ढांचे और कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। इंसदाद मनशियात के लिए ANF की काविशों और कामयाबियों पर तफसीली गुफ्तगू की गई।
ANF मेजर जनरल अब्दुल मुईद ने शुरका के सवालात के जवाबात दिए। और अब खबर शामिल करेंगे पंजाब हुकूमत का कलअदम TLP की जायदादें और असासे मुंजमद करने का हुक्म। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे भर में TLP के नाम पर मौजूद तमाम जायदादों और असासों की तफसीलात जमा करके 15 नवंबर तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत फैसला चेयरमैन सब कैबिनेट कमेटी ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। और अब आपको बताएंगे वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। महकमा तालीम के तरक्याती और गैर मुल्की इमदादी मनसूबों की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। वजीर आला सिंध की स्कूल की तामीर नौ और अपग्रेडेशन के मनसूबों में तेजी लाने की हिदायत। कहा, तालीम मुल्क की तरक्की की रीढ़ की हड्डी है। तालीम पर खर्च होने वाला हर रुपया मुस्तकबिल में सरमायाकारी है। मनसूबों की तकमील के लिए 100% फंड्स जून 2026 तक मुस्तस किए गए हैं। PSDP के तहत 30 अजला में 481 स्कूलों की तामीर नौ जारी है। और खबर शामिल करेंगे सिंध के माहौलियात कोस्टल डिपार्टमेंट में तरक्की और तबादले। DPC की सिफारिश पर 4 असिस्टेंट डायरेक्टर्स को डिप्टी डायरेक्टर के ओहदों पर तरक्की दे दी गई है। तरक्की ग्रेड 17 से ग्रेड 18 के ओहदों पर दी गई। तरक्की पाने वालों में फरजाना नसीम, अली मोहम्मद रिंद, अब्दुल मालिक, अली नवाज भुम्बरो शामिल। नोटिफिकेशन सेक्रेटरी माहौलियात जुबैर चन्ना की मंजूरी के बाद जारी किया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुजम्मिल यासीन से। जी मुजम्मिल, बताइएगा। कोस्टल डिपार्टमेंट में तबादले कर दिए गए हैं। DPC की सिफारिश पर 4 असिस्टेंट डायरेक्टर्स को डिप्टी डायरेक्टर को तरक्की दी गई है। तरक्की ग्रेड 17 से ग्रेड 18 के ओहदों पर दी गई। तरक्की पाने वालों में फरजाना नसीम, अली मोहम्मद रिंद, अब्दुल मालिक, अली नवाज भुम्बरो शामिल है। नोटिफिकेशन सेक्रेटरी माहौलियात जुबैर चन्ना की मंजूरी के बाद जारी किया गया। जितने भी जो अफसरान हैं जिनको तरक्की दी गई है, इनके जो पोस्टिंग के जो नोटिफिकेशन हैं वो अलहदा से निकाले जाएंगे। जी शुक्रिया मुजम्मिल यासीन अपडेट करने के लिए। खबर शामिल करेंगे वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा बल्दियात के तरक्याती मनसूबों का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। वजीर आला को नासिर शाह की तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग। कहा, लोकल गवर्नमेंट के तरक्याती मनसूबों का मजमूई हजम 78 अरब रुपए से जायद है। महकमा बल्दियात के गैर मुल्की इमदादी मनसूबे 45 अरब रुपए से जारी हैं। 756 तरक्याती स्कीमों पर काम जारी है, जिनमें 713 जारी और 43 नई स्कीमें शामिल हैं। कराची के 9 मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए 7 अरब 66 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। KMC के 200 मंसूबों पर 18 अरब 36 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन के 47 मंसूबों के लिए 1 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस है। तरक्याती मंसूबों की माहाना पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की जाए। वजीर आला सिंध की अफसरान को हिदायत। और दूसरी जानिब सिंध हुकूमत के तरक्याती मंसूबे सूबे की मईशत और आवाम की जिंदगियों की वाज़ेह बेहतरी का सबब बन रहे हैं। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, कोस्टल हाईवे, रोहड़ी गुड्डू बैराज रोड, मेहरान हाईवे, टंडो अहलियार ता टंडो आदम सड़क और सांगड़ ता रोहड़ी शाहरा अहमियत के हामिल मंसूबे हैं। हाईवे और सड़कों के मंसूबे इलाकाई और बैनुल सूबाबी रवाबित के मजबूत बनाएंगे। तिजारत, ज़राअत और सनती शोबों को भी फ़रोग़ मिलेगा। सिंध हुकूमत की तरजीह तरक्की के अमल में शफाफियत, रफ्तार और अवामी फ़ायदे को यकीनी बनाना है। अब आपको बताएंगे शहर कायद में बल्दिया उज़्मा की गफलत से डालमिया रोड टूट फूट का शिकार हो गया है, जिसके बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मजीद जानते हैं आमिर आवान से। अकब में देख सकते हैं कि इस रोड की हालत किस कदर ख़राब है। आधा रोड जो है वो इस्तेमाल में है और आधा रोड जो है वो नाकाबिल इस्तेमाल है। मेरे कैमरामैन साजिद अंसारी अगर आपको दिखाएं कि यहाँ पे रोड की हालत किस कदर खस्ता है, ट्रैफिक की रवानी जिसकी वजह से यहाँ शदीद मुतासिर हो रही है। महंगे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर। दूसरी जानिब अगर हम बात करें कि कराची में एयर क्वालिटी वैसे ही ख़राब है और दूसरी जानिब यहाँ पर इस रोड की वजह से
जिस कदर मट्टी हवा में शामिल हो रही है, लोगों को मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो रहे हैं लोग। साथ ही साथ यहाँ पर आवाम की जानिब से ये कहना है कि भाई दावे तो बहुत किए जाते हैं हुकूमत की जानिब से, लेकिन अमली तौर पर कोई भी उसका मिसाल सामने नहीं आती है। ये रोड गुज़िश्ता कई अरसे से इसी तरह टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल चलाने वाले जो हजरात हैं वो शदीद परेशानी का शिकार हैं। आगे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी जाने वाले तलबा तालबात जो हैं वो इस रोड की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। जहाँ एक जानिब लोगों को मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब यूनिवर्सिटी आने जाने वाले लोग और कारोबारी हजरात जो हैं, जो यहाँ से अपने दफातर की तरफ जा रहे होते हैं, उनका कहना है कि मिनटों का सफ़र उनका घंटों का हो गया है सिर्फ इस रोड की वजह से। जी बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदे आमिर आवान हमें आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएंगे गुलबर्ग टाउन के इलाके आयशा मंजिल पर बिल्डर्स की मनमानियां जारी हैं। पायनियर 1 ब्लॉक 7 पब्लिक सेल मंसूबे को SBCA की जानिब से मंजूरी तो दी गई, मगर बिल्डर ने सेल NOC के बगैर शहरियों को फ्लैट्स और दुकानें फरोख्त करने का शुरू कर दिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुतालिक अफसरान बड़ी जालसाजी पर लाइल्म नजर आ रहे हैं। बिल्डर की जानिब से पब्लिक सेल मंसूबे पर मेज 9 फ्लोर बना दिया गया। SBC हुकाम की खामोशी ये जाहिर करती है इदारे के अमले की मिली भगत से ये काम जारी है। खबर देंगे कराची यूनिवर्सिटी से। आपको बताएंगे कराची यूनिवर्सिटी में खूंखार कुत्तों का राज है। चंद मिनटों में 2 मासूम बच्चे आवारा कुत्तों का शिकार हो गए हैं। 5 साला बच्चे का आधा चेहरा कुत्ते ने नोच डाला। वाकया कराची यूनिवर्सिटी के अंदर पेश आया। कुत्तों ने मासूम बच्चे और बच्ची को अपना शिकार बनाया। मकीनों का कहना है कि गुज़िश्ता कई माह से कराची यूनिवर्सिटी में कुत्ता पकड़ मुहिम बंद है। आवारा कुत्तों के खात्मे के लिए हंगामी मुहिम शुरू करने की अपील कर दी गई। आपको बताते चलें कराची यूनिवर्सिटी में खूंखार कुत्तों का राज है। चंद मिनटों में 2 मासूम बच्चे आवारा कुत्तों का शिकार हो गए हैं। 5 साला बच्चे का आधा चेहरा कुत्ते ने नोच डाला है। वाकया कराची यूनिवर्सिटी के अंदर पेश आया। कुत्तों ने मासूम बच्चे और बच्ची को अपना निशाना बनाया। आवारा कुत्तों के खात्मे के लिए हंगामी मुहिम शुरू करने की अपील कर दी गई है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे कराची के तिजारती मरकज लाइट हाउस के लंडा बाजार में आतिशज़दगी आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। हुकाम के मुताबिक आग ठेले और पथारों में लगी है। लाखों रुपए का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। खबर देंगे रात गए थाना जमान टाउन की हुदूद में वाक़े निजी अस्पताल में मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगने का अफसोसनाक वाक़या कोरंगी 2.5 नंबर पर मौजूद सुल्ताना मेडिकल सेंटर में पेश आया। 2 साला मोहम्मद हुसैन डॉक्टर की गफलत की वजह से जान की बाजी हार गया। अहले खाना ने अस्पताल इंतजामिया पर संगीन गफलत के इल्जामात आयद कर दिए। पुलिस ने वाक़े में मुलव्विस डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। अहले खाना के मुताबिक पुलिस लेन देन में लगी हुई है। हमें इंसाफ फराहम किया जाए। और अब खबर शामिल करेंगे वेस्ट पुलिस का CTD और रेंजर्स के हमरा मंगोपीर गरम चश्मा के करीब सर्च ऑपरेशन। दाखिली और खारजी रास्तों को सील करके मशकूक मकामात की तलाशी ली गई है। मशकूक अफराद को मजीद तस्दीक और पूछगछ के लिए थाने मुंतकिल कर दिया गया। SSP वेस्ट तारिक इलाही मस्तोई के मुताबिक सर्च ऑपरेशन का मकसद इलाके में अमन व अमान का कयाम और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ जराइम पेशा अनासिर की गिरफ्तारी अमल में लाना है। जराइम की दुनिया से मज़ीद खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में रोजाना की बुनियाद पर टारगेटेड कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। लांडी पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। दाखिली और खारजी रास्तों को सील करके घरों, होटलों और मशकूक अफराद की तलाशी ली गई। तलाश डिवाइसेस के जरिए मशकूक अफराद की वेरिफिकेशन भी की गई।
اور آپ کو بتائیں گے کہ ماڑی انویسٹیگیشن پولیس کی اہم کارروائی ہوئی ہے. معصوم بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے والے ملزم گرفتار. ایس ایس پی توحید میمن کا کہنا ہے کہ ملزم بچوں کے ساتھ زیادتی کی نازیبا ویڈیوز بھی بناتا تھا. موبائل فون سے نازیبا مواد برآمد کر لیا گیا ہے. جرائم کے حوالے سے مزید آپ کو بتائیں گے شاہ لطیف پولیس نے اسٹریٹ کرائمز کی وارداتوں میں ملوث 4 ملزمان گرفتار کر لیے. ملزمان سے 25 قیمتی فون، اسلحہ، موبائل فون کی IMEI تبدیل کرنے والی ڈیوائس برآمد. شناخت نور، زبیر، حمید اور مہران کے نام سے ہوئی. پولیس کے مطابق ملزمان کا گینگ مہران ہائی وے، نیشنل ہائی وے سمیت مختلف علاقوں پر لوٹ مار کی وارداتیں کرتا تھا. گرفتار ملزمان موبائل فون کا سافٹ ویئر تبدیل کر کے دوبارہ فروخت کر دیتے تھے. اب خبر شامل کریں گے ماڑی پور بھوتانی گوٹھ میں پولیس مقابلے میں ملزم کی ہلاکت کی تفصیلات جاری کر دی گئیں. ملزم کی شناخت وہاب حسین کے نام سے ہوئی. DIG ساؤتھ اسد رضا کے مطابق پولیس مقابلہ کانسٹیبل وقاص سے ہوا جو ڈیوٹی پر جا رہا تھا. 2 ملزمان موٹر سائیکل سواروں نے کانسٹیبل کو لوٹنے کی کوشش کی. فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملزم مارا گیا ہے. کانسٹیبل وقاص کی پوسٹنگ موچکو تھانے میں ہے. کانسٹیبل وقاص کی بہادری پر اس کو CC سیکنڈ اور کیش ریوارڈ بطور انعام دیا جائے گا. اور اب بلیٹن میں خبر شامل کریں گے کراچی ایئرپورٹ سے لے کے گھگر پاٹھک تک پولیس کی منمانیاں. سسی ٹول پلازا پر قائم چیک پوسٹ پر ایکسائز نارکوٹکس کے اہلکاروں کی سرے عام رشوت وصولی. ایکسائز کی وردی میں پرائیویٹ لوگوں کو سرے عام وصولی پر لگا دیا گیا ہے. پرائیویٹ افراد گاڑی روک کر چیکنگ کے بہانے رشوت وصولی کرنے لگے. آپ کو بتائیں گے کراچی ایئرپورٹ سے لے کر گھگر پاٹھک تک پولیس کی منمانیاں. سسی ٹول پلازا پر قائم چیک پوسٹ پر ایکسائز نارکوٹکس کے اہلکاروں کی سرعام رشوت وصولی. ایکسائز کی وردی میں پرائیویٹ لوگوں کو سرعام وصولی پر لگا دیا گیا ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے ایاز واریوں سے. جی ایاز بتائیے گا. جی بالکل، گگر فاٹک سسی ٹول پلازا پر قائم چیک پوسٹ ایکسائز نارکو ٹیکس کے اہلکاروں کی سریعام رشوت وصولی کا دھندا جاری ہے. ایکسائز کی وردی میں پرائیویٹ لوگوں کو سریعام وصولی پر لگا دیا گیا ہے. میٹرو 1 نیوز کو حاصل ہونے والی اس ویڈیو میں واضح طور بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ پرائیویٹ لوگ کس طرح گاڑیوں کو روک کر کھڑے ہوئے ہیں اور چیکنگ کے بہانے رشوت وصولی کر رہے ہیں، جبکہ ڈرائیور حضرات کا کہنا ہے کہ کاغذات، ٹیکس، ہر چیز پوری ہونے کے باوجود 1500 یا 2000 ہم سے زبردستی وصول کرتے ہیں. نہ دینے پر مختلف طریقوں سے ہمیں پریشان کیا جاتا ہے. ایکسائز نارکو ٹیکس کے ڈائریکٹر سے ڈرائیور حضرات نے مطالبہ کیا ہے کہ افسران کے ساتھ جو عملہ ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے، جبکہ رشوت نہ دینے پر انہیں روک کر پریشان کیا جاتا ہے. میٹرو 1 نیوز کو حاصل ہونے کی اس ویڈیو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ رشوت کس انداز سے وصول کی جا رہی ہے اور شہریوں کو کس قدر پریشان کیا جاتا ہے. خاص طور جن گاڑیوں میں فیملیاں سفر کرتی ہیں انہیں بھی پریشان کیا جاتا ہے. جبکہ میں آپ کو بتاتا چلوں، بدین سجاول ٹھٹھا سے سبزیاں اور چاول سے بھرے ٹرک جیسی گاڑیاں کو اور مچھلی کی جو لوڈر سزوکیاں کراچی فشری ابراہیم حیدری کے لیے آتی ہیں، انہیں بھی دیر تک روک کر مختلف اینگل سے ہراساں کرتے ہیں. مچھی سے بھری ہوئی گاڑیاں ہوتی ہیں، ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جی شکریہ ایاز واریوں ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. اب آپ کو بتائیں گے شاہ لطیف پولیس نے اندھے قتل کا معاملہ حل کرتے ہوئے اقدام قتل میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا. پولیس نے خفیہ اطلاع پر ٹیکنیکل بنیادوں پر کارروائی کرتے ہوئے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا. ملزمان نے مقتول عامر کو 15 لاکھ سے زائد رقم دینی تھی. ملزمان نے مقتول عامر کو گھر بلا کر ہتھوڑے کے وار سے ہلاک کر دیا. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، شاہ لطیف پولیس نے اندھے قتل کا معاملہ حل کر لیا. پولیس نے معاملہ حل کرتے ہوئے اقدام قتل میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا. پولیس نے خفیہ اطلاع پر ٹیکنیکل بنیادوں پر کارروائی کرتے ہوئے 3 ملزمان کو گرفتار کیا. ملزمان نے مقتول عامر کو
15 लाख से जायद रकम देनी थी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे नूर इस्लाम से। जी नूर, बताइएगा, शाह लतीफ पुलिस ने अंधे कत्ल का मामला हल कर लिया है। जी बिल्कुल, शाह लतीफ पुलिस ने अंधे कत्ल का मामला हल करते हुए 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। शाह लतीफ पुलिस ने खुफिया इतला और टेक्निकल शवाहिद की मदद से कार्रवाई करते हुए अंधे कत्ल का मामला हल करते हुए 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने आमिर नामी शख्स को कत्ल किया था और गिरफ्तार मुल्जिमान में तोकीर, तनवीर सगे भाई हैं और इनके वालिद शब्बीर भी जो है वो आमिर के कत्ल में मुलविस है। मकतूल आमिर मुल्जिम तोकीर का करीबी दोस्त बताया जा रहा है। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि मुल्जिमान ने मकतूल आमिर को 15 लाख रुपए से जायद रकम देनी थी। रकम की अदायगी का बहाना बनाकर इसे घर बुलाया गया, जहां दौरान गुफ्तगू हथौड़े के वार से इसे कत्ल किया गया। कत्ल के बाद मुल्जिमान ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और झूठी इतला दी कि कुछ नामालूम अफराद आमिर को अगवा करके ले गए। ताहम पुलिस टीम ने टेक्निकल शवाहिद की बुनियाद पर चंद घंटों में ही असल मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक दौरान तफ्तीश मुल्जिमान ने एतराफ जुर्म कर लिया और बताया कि उन्होंने रकम के तनाज़े पर आमिर को कत्ल किया। बाद अज़ा मकतूल की लाश को घर के खुफिया कमरे में छुपा दिया गया था। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक वाक़ा बाहिमी मनसूबाबंदी के तहत अंजाम दिया गया, जबकि घर की खवातीन के मुलविस होने का भी इंकशाफ हुआ है। जी शुक्रिया नूर इस्लाम, हमें आगाह कर रहे थे। शाह लतीफ पुलिस ने अंधे कत्ल का मामला हल करते हुए इक़दाम कत्ल में मुलविस मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। अब आपको बताएंगे पाकिस्तान के लेजेंड अदाकार कवी खान की आज 82वीं सालगिरह मनाई जा रही है। 13 नवंबर 1942 को पैदा होने वाले मोहम्मद कवी खान ने फ़नी सफ़र का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान पेशावर से किया। 1964 में पीटीवी के पहले ड्रामे नजराना से पीटीवी टीवी पर जलवागर हुए और देखते ही देखते हर किरदार में जान डालने वाले अदाकार बन गए। कवी खान ने 200 से ज़ायद फिल्मों और हज़ारों ड्रामों में अपनी फ़नकाराना सलाहियतों के जौहर दिखाए। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, सितारा इम्तियाज़ और मुतादद एजाज़ात से नवाजा। 5 मार्च 2023 को कवी खान तवील फ़नी सफ़र के बाद दुनिया से रुखसत हुए। बदमाश हो तुम, घटिया इंसान हो, गिरे हुए हो। वो मजाक मजाक में सर, मजाक किसी मासूम और बेगुनाह लड़की के सर से दुपट्टा खींचते हुए तुम्हें अपनी बहन का नंगा सर याद ना आया? बोलो सर, वो ऐसा था कि बकवास नहीं कर रहे जी सर। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें मेट्रो वन न्यूज़।